So the time that you take is 40 minutes. There is a reason, because in report writing, what you have to do is you have to just look at some data or information, and then you'll have to select and report and then make some comparisons. But all the information is already available in the form of different diagrams. However, in an essay, you are just given a prompt, sort of a situation, merely a background, and then you will have to think of the arguments and logical explanations and examples on your own. So, of course, then you will have like two tasks. One, to think of an answer, and then to write. So that's why you need more time. The second reason that why do you need more time is number of words, 250 words minimum in your essay, and in your report you'll have to write 150 words. Two reasons. The other reason is the division of the percentage of band score, which more or less becomes 3 band score for your task 1, which was a report, and 6 band score for your essays. Now, it's not a simple division. I mean, it's not just 6 band score for writing task 2 and 3 for task 1. It's a long process, which we have been discussing earlier as well, that in task 1, there are 4 different features, out of which you get different scores, and then there's an average for task 1 out of 9, and then there are 4 different 9s for your task 2, and then there is an average of them, and then out of 9 you get a band score for your task 1, out of 9 you get a band score for task 2, and then the ratio, the percentage, that the impact of your task 1 on your score is 33%. Of course, which is 1/3, and 2/3 is your essay writing. So that makes somehow 3 + 6. So of course, now the impact of your essay is higher, greater. So you'll have to be more careful in your essay writing. Now, this is the basic introduction. Now, there are a few more things which you need to remember while you read different question types. Now, I'm going to share on my screen that there are 2 main divisions of essays. One is argumentative, that is opinion-based. And then another one is discursive, which is usually open-ended. Now, when we say argumentative, then you'll have to take one side. You'll have to be a bit biased in order to prove a point. You'll have to argue in order to support an argument. So in other words, you will have an argument. So if it means that you are going to favor an opinion, it could be your personal opinion, or you can just make it up. And you can also pick sometimes opinions which are already given in different questions. We are going to see those question types in a while. And in discursive essays, you are not asked to give your opinion. Rather, you're just asked to usually to show 2 different sides of the argument. For example, there could be a problem to which you'll have to think of some causes and some solutions. But so now, once again, the thing is, sometimes
students get confused that if I'm not going to give my opinion, that how can I come up with a cause, because it is what I think that this is the cause of the problem and this is the solution. The thing is, you don't argue against an opinion. There is no established opinion which you're going against, as you shall see in the question types. So in real life or in any situation, it is impossible to be absolutely neutral, because not having an opinion is also an opinion. So this division, even if you don't remember, can be tackled just by reading the question statements properly, because these two terms are rather more academic in their tone, and you don't have to remember these terms. Even without understanding these two terminologies, you can just understand your question, because if you understand the question, which is already in very simple and basic English, you can answer the questions properly. So now, on the basis of these two divisions, there are further question types. And now those question types can only be understood if we could see them and read the questions and then decide which particular question type does this particular question falls in. So I'm going to share those questions on my screen. So if you guys have any questions about this basic introduction, you may ask now. Sir, can you please describe discursive again? Okay. Yeah, sure. See, actually, whenever we call something discursive, it simply means that we are being indirect. And when I say indirect, it means that our opinion is not explicitly given. So let me give you an example. If someone asks me that there are some people who think that English is important, and that there are some people who think that imposing English language in schools will actually suppress the creativity of students. Now, there are two different opinions, and if the question asks me to discuss both of the arguments, and the question does not ask me for my opinion, so what I will do is I will analyze both of the arguments with a balanced approach. So how? I will play the devil's advocate. When I say play the devil's advocate, it means that I will, in one body paragraph, I will try to think just like the people who believe that English is really important in today's world. And then I will try to convey to the audience what such people believe, or why do such people believe that, who actually believe that English is significant. And in the other body paragraph, I will argue from the other point of view. So it is not me, rather it is those two different groups of people which I am representing in my essay. And in conclusion, we do not reach a particular point. Rather, we, in some sense, we tell the audience that these are the two perspectives, and it is the audience who are to decide that which particular one do they feel or find more interesting. Now, of course, our opinion is naturally going to be somehow included in the answers, because every human being is naturally biased. But as I said at the beginning, that whenever we say discursive, it actually means indirect. So we are not giving our opinion explicitly when it comes to a question which is discursive. But when it's an argumentative essay, then we actually mention our opinion, that this is what I believe. So in short, telling what your opinion is in an essay means you are writing an argumentative essay. And not telling what your opinion is
makes it a discursive. So according to situation, we have to describe the thing, the essay, right? Yes, and and also is the essay is the essay that we are tackling an argumentative one or discursive one? That can only be decided after reading the instructions, Okay. because every next time the instructions might change according to the question type. Let's say if the question asks you for your opinion, then you are going to give your opinion. So that Okay. makes it an argumentative essay. And if the question asks you for your opinion, does not ask you for your opinion, Then and it of course you're not discursive. going to give your opinion, so it's a discursive one. Okay, sir. Got it. But one more thing, I mean, when they ask questions which are discursive, it doesn't mean that you are not going to give your opinion. But the only difference is you don't mention it. If you remember yesterday or the day before yesterday, I don't know in which particular class I did discuss, or maybe it was on campus somewhere, I was talking about um, showing and not telling. Have I ever talked about it? Um, so I think I Okay, didn't take that class. okay. Maybe I must have discussed this in the classes or on campus. Let's imagine a situation. Um, let's say that you are trying to convey to someone that you are angry. So now there are two ways. You tell the people that you are angry. One thing. The other reason is you don't say a word, but you slam the door, you drop a glass somewhere, Like and you gesture? split the water with your body language, you Yes. know. Okay. So that is what we call showing and not telling. But you are somehow telling what your situation is, that you are angry, you're not happy. Okay. So either it's going to be your language or body language. So it's some sort of a situation similar, which is in your essays, that you are not actually telling, but showing, of course. But apparently you will try to be as subtle and as indirect as possible. So apparently if someone reads, it should sound as if you are absolutely neutral. But it is your craft that how well do you manage your essay, because you are going to actually argue for both of the arguments, and it's your opinion. Plus we don't have audience here in the form of readers or of a magazine or an article. So there is only one reader, one audience, of course, that is examiner. So even if he's not convinced by the argument, that's not important. What's important is the organization and the language. If it makes sense somehow to some extent, the rest is fine, because what that matters is your language. Of course, logic also does matter to some extent, but don't worry, because you are not going to publish this article in a magazine or a newspaper, so it's not a big problem. Now, by the way, a general structure for your essay is that's it. These are 4 paragraphs which you're going to write in your essays. It is possible, it is allowed, if it becomes unavoidable in some situations, to go for a third body paragraph. However, try not to go for that, because it's not a part of the demand, so why would someone waste one's energy? The other thing that you need to understand here is usually when someone goes for a third body paragraph, the essay is no longer an organized one, because you're going to see that all the question types that we have in our IELTS writing task 2, all of them
are divided into two main parts. So what's the use of the third body paragraph? Nothing, not at all. So don't try to go for a third body paragraph unless and until it becomes essential, maybe in some certain situation. It is not forbidden, it is not haram, but I wouldn't recommend going for a third body paragraph. So try to stick to this structure. So plus in the report writing, I told you that you could put your overview paragraph right after introduction, but you cannot put the conclusion before the body paragraphs. It has to be the last one, of course. So this is conclusion and not an overview. A report is something else. It has a different criterion, but in an essay, it has to be the last one. So this is the basic format. Plus, I'm going to talk about how many sentences are going to be there in the introduction and how many and what kind of sentences are going to be there in the body paragraphs and conclusion. There might be some subtle differences according to the question types. So we will spend like one slot for one question type so that the difference is clearly understood. So this is the basic format for all the essays, however. And remember, once again, there is no concept of having a heading or writing a heading or providing a heading or giving a heading to any paragraph. This is just for your understanding that there is a paragraph which we call introduction, but we don't give any headings. Same applies for all the other paragraphs as well. So let's move towards the question types. And the questions which you might want to ask about these question types can be asked right after I complete the basic introduction of these 5 question types. Let me tell you some important points about them. If you want to take notes, it would be better because I haven't written any definitions or any bullet points about them, so that you could also feel being a part of the class by taking some notes, maybe, because usually you guys don't speak and it is only I who speaks a lot. All right. See, sometimes these question types are confusing because some of them are quite resembling to each other. For example, the first 2 question types, they are quite similar if someone does not look at them very carefully. So you have to be really, really careful and subtle while reading a question so that you could respond to the question accordingly. Now think of the names or the titles that are given. The first one is called double argument essay. Now, it is not your argument. There are 2 arguments which are already available in the description of the question. If you could compare it to the questions that we have had in the report writing, you could have seen that there was a description and then there were instructions. Same is the case with task 2. Now in that description, there are already the description already has those 2 arguments. So there are 2 arguments in this question, and then instructions are given. Now, instructions are different according to the situations, and sometimes it becomes an argumentative essay, and sometimes it also becomes a discursive essay. I'll tell you, I'm going to show you some slides where there are questions from all the question types that we can see on our screens.
So this division also, I mean, these 5 questions, it is not the only division. Sometimes, for example, the first question type, double argument essay, is further divided into 2 more divisions, that is argumentative and discursive. So overall, it becomes 8 question types sometimes, because the third question type, as you can see, sometimes it's a cause a solution essay, and sometimes it's a problem solution essay. And there are more. There is more to it. I'll talk about it, but let's go gradually through all of them. So the first one has 2 opinions given. There are 2 opinions which are already given. And in the second question type, that is agree or disagree essay, there is merely 1 argument given. There is 1 opinion given. For example, if there is a question, let's suppose that some people believe that mathematics must be a part of curriculum because it nourishes the intelligence quotient of students. However, there is another argument. There are other people who say that mathematics should not be a compulsory subject because it is quite impractical in today's world. I mean, it's just an opinion. It could be a wrong one, but there is an opinion. It is given in the question. So now there are 2 different opinions. So some of the people are supporting, imposing mathematics in schools and colleges, and some of them are going against it. So these 2 arguments are already given. Now we have to decide that which particular one we think is more logical, and then we come up with our opinion if it is asked for. I'll show you the questions. And let's say another question type could be, many people think that mathematics must be a part of syllabus till graduation. And then you are asked to write an essay on it. So now there is only 1 opinion. There is no counter argument available. So, okay, let me reply to this call and then I'll let you know. Just 1 moment. All right. Sorry. So yes, where were we? I was saying what? Yes. So this is the basic difference. And then the third one is cause a solution essay, or sometimes it could become a problem solution essay, because sometimes only the causes are asked and then solutions, and sometimes only the problems and solutions. And the fourth one is very easy. You already know what advantages and disadvantages are, so I don't need to explain it a lot. However, the last one, mixed question essays. It is actually a blend of 2 different question types. Usually it is a blend of the third and fourth question type. As you can see that in the third one, there are causes. Usually causes are picked as a part of the question, and then one of the parts of the fourth question type, that is advantages or disadvantages, sometimes both of them, by saying impacts and not mentioning advantages or disadvantages, because when you say impacts, it could be both positive or negative, so both advantages and disadvantages are possible to be mentioned in the answer. So as you can see that almost every question has 2 parts, 2 main chunks. So let's see some of the questions. Can anyone read this question for us, please?
Some people say that now we can see films on our phones or tablets and there is no need to go to the cinema. Others say that to be fully enjoyed, films need to be seen in a cinema. So that is the description, the information which is already available, or you could call it the background information which is already available for your essay. So you can see that there are two different opinions which are given. The first opinion is some people say that now we can see films on our phone or tablets and there is no need to go to the cinema. That's the opinion, that there is no need to go to the cinema. One opinion. The other opinion is films that in order to be fully enjoyed, films need to be seen in a cinema. So two opposite opinions are already given. So there are two arguments. This is why this is a double argument question. Now, most of the times, like 99% of the times, these questions do ask for your opinion. But it is possible that these questions might not ask you for your opinion. And when they don't ask you for your opinion, the instructions will be just like discuss both of the given arguments or discuss both these views. And that's it. That's what the instructions will say if opinion is not asked for. However, usually the opinion is asked. So discuss both these views and give your opinion. So this is the first question type, and this is one sample question. And you can see that there is some more information, or you could call them instruction sentences at the end. Could you just give it a read as well? Discuss both these views and give your opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own experience or knowledge. So this part, the third bullet point, as you can see, by the way, on your question papers, it's not in the form of bullet points, rather in the form of sentences. I have made them bullet points here so that I could explain things well. So if the third bullet point, which you could see and which you have just read, if it is not available, let's say, if it's not available, then assume that they are only asking for examples from your knowledge and not experience. Now, the thing is, when you come up with examples only from your knowledge, it is a formal essay. And when you also include examples from your experience, it becomes a semi-formal essay. So if they don't ask for your experience, then no personal examples. Remember, if they don't ask for examples from your own experience, then don't mention any personal examples to support your argument. The reason is, if in a formal essay you start talking about how you feel about things, or what happened with your cousin or friend or any family member, it does not remain a formal essay any longer. But sometimes this instruction, rather, I wouldn't say sometimes, rather usually this part is also mentioned so that you could write a semi-formal essay. In such situations, your examples should be a blend. Usually you'd need only two examples. So in one body paragraph, your example could be something from your knowledge, and in the other one could be from your experience. However, even that is not essential when they ask for your experience or knowledge, because it's not and, rather or. So you have choice when it is mentioned to come up with an example or two from your experience. Now, this question is a double argument essay. Now, how could we plan our essay? Most people
would first of all think that, all right, because instructions ask us to discuss both of the views, so first we will discuss one view in one body paragraph and the other view in the other body paragraph, and the third body paragraph we will give our opinion. Doesn't make sense. Why? I mean, let's say that if you are discussing one opinion in a body paragraph, you are going to discuss that particular opinion from your own perspective, and that perspective is your opinion. And when you discuss the second body paragraph, you are going to discuss that particular opinion with your own perspective, and that's your opinion. So why do you need a third body paragraph? Because you have already mentioned your opinion while discussing both of the views. Because you are not going from a neutral perspective. You are not discussing it in a balanced way. You are, of course, actually convincing the reader to believe in whatever you say about the given arguments. And the key here is to support one of them. When they say discuss both these views and give your opinion, some students start thinking in a different way. They start thinking as if they'll have to discuss both of the arguments and then they'll have to give an opinion which may or may not be according to the given argument. So there is a third opinion that develops. In order to write such an essay, you need at least 3 hours, and you have got only 40 minutes. So that is why many people usually lose band score because they do not understand the subtleties of this issue. So remember this trick, that when they ask for your opinion, you actually pick one of the two given opinions. Let's say, for example, for the sake of argument, what do you guys think that, let's say, if you were to write essay on this particular question, which particular opinion convinces you? Which one would you support among these two opinions? The second one. Okay, that's your opinion. So you would, what you would do So is you will. So I'll have to stick on that opinion, right? I don't need to Yes. mention about the first one, right? No, you'll have to describe, you'll have to discuss it. Now, what you're going to do is you're going to go against the first argument, and Okay. you're going to go in favor of the second one. Second. Because discussing both of the given arguments is a part of the assignment. It is the past part of the test. So now when am I supposed to write it in on body paragraph or where? Or yes, see, now that's a general rule that we will mention. Okay, now see, I know that you are going to get astonished right after I say these next few words. You are going to mention your opinion in the first paragraph. In the introductory paragraph, you are going to mention your opinion. And okay. the body paragraphs also carry your opinions till the conclusion. Now, we have, usually we have a certain idea in our mind that we will first discuss all the arguments, and in conclusion, we will reach a particular result. This is what usually people think, and this is why many people would actually wait for the last paragraph, which is the conclusion, and they will give their opinion there. But I suppose that you guys already know what a research article is, or what a thesis research is. In your universities, you must have done that. So there is a concept of hypothesis. You have some research questions. Now, those research questions, why do you have written those research questions? Because you actually know that what are the results that you're going to get from the research. So you already have built an opinion. And even
Another example could be taken. For example, whenever you want to go for a research, you have a synopsis which you submit to the university and get approved. And in the synopsis, you already tell that this is what I'm going to do. This is what I'm going to prove. So you have actually made a hypothesis even before arguing or even before starting the research, even before conducting the research. You already know what is the result that you're going to achieve. That is why the introductory paragraph has your opinion. So then when you reach your body paragraphs, you are just insisting and proving your argument. And in conclusion, you are going for a recapitulation. And that's it. So if someone, let's say the examiner, reads your introductory paragraph, he should know what your opinion is. It should be then categorically mentioned. Any questions? I know there are some questions about this idea because this idea is always challenged by many students. And I want to hear from you if you have any confusions about it. That why do we write or mention, or can we just wait for the last paragraph if you have any questions in your mind? No, sir. All right. Well, good then. Sir, All right. आपने यही बोला है ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हमने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है? एंड बॉडी 1 में हमने आर्गुमेंटेटिव जो भी लाइक किस मतलब आर्गुमेंटेटिव आप कह रहे हैं ना कि उस ऐसा है कि इंट्रोडक्शन का बिल्कुल असल में जो ओपिनियन जब मांगा तो वो तो है ही आर्गुमेंटेटिव, राइट? तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर हम पहले मेंशन करेंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है, वो कैसे करना है उसके ऊपर हम हर क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग देखेंगे कि किस तरह से वर्डिंग रखनी है। और बॉडी पैराग्राफ्स में जब आप आएंगे तो जाहिर है कि आपने पहले ही ओपिनियन दिया हुआ है, तो उसी ओपिनियन को प्रूव करने के लिए आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के जरिए से अपनी बात को साबित करेंगे। बस इतना काम है हर बॉडी पैराग्राफ का। मिसाल के तौर पे अच्छा, कंक्लूजन में क्या करेंगे? फिर कंक्लूजन में हम सिर्फ रिकैप करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं जो बातें ऊपर कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट है टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट, अभी हम पढ़ेंगे, तो उन्हीं को हम दोबारा रिकैप करते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर। थीसिस स्टेटमेंट होता है इंट्रोडक्शन में और टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, उन्हीं को हम दोबारा न्यू वर्डिंग में हम लिखते हैं। मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। तो असल बात यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीटेशन इन एसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर अगले पैराग्राफ में नई बातें लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि बहुत सारी बातें लिखना इज नॉट एन एसे। कम बात को इस्टेब्लिश करने का मतलब उसको सपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स एंड एविडेंस। दैट्स इट, यही काम है। और रिपीटेशन होगी, इसीलिए सिनोनिम्स की बड़ी जरूरत पड़ती रहती है एसेस के अंदर भी। सर एक क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर क्वेश्चन इज दिस कि दो पॉइंट्स लिखे हुए, एक के अगेंस्ट हमने कहना है, सेकंड के फेवर में कहना है। तो पहले नेगेटिव से शुरू करें या पॉजिटिव से शुरू करें? पहले उससे शुरू करें जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि IELTS डज अलाउ यू कि आप चाहें तो एक वो कहना है टू सिट ऑन द फेंस, यानी कि आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट दिस आर्गुमेंट इज लॉजिकल एंड टू सम एक्सटेंट दैट वन, लेकिन इट्स नॉट व्हाट आई वुड रिकमेंड। उसकी रीजन ये है कि अब असेसमेंट फीचर्स में मैं राइटिंग टास्क 2 के दोबारा दिखाऊंगा, उसमें क्योंकि जो पहला जो असेसमेंट फीचर है एसे के अंदर वो टास्क रिस्पॉन्स है, तो क्लियर ओपिनियन यानी थ्रू आउट, यानी आपका जो भी एसे है उसके शुरू से लेकर आखिर तक एक क्लियर ओपिनियन का होना इज इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है कि मैं ये अभी कर देता हूं क्योंकि जो टास्क 1
के जो असेसमेंट फीचर्स थे उससे जो डिफरेंस है टास्क 2 के असेसमेंट फीचर्स में, वो पहले असेसमेंट फीचर में, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द फाइल समवेयर. Let me share my screen for that purpose for a while. जो हमने कल असेसमेंट फीचर्स पढ़े वो रिपोर्ट राइटिंग के लिए थे. वहां पे आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था टास्क अचीवमेंट, अब यहाँ लिखा है टास्क रिस्पॉन्स. राइटिंग टास्क 2 ऐसे के लिए. सो 9 बैंड स्कोर, fully developed position, तो you will have to take a position. और ये देखें कि आपको relevant fully extended and well supported ideas यानी logical explanation. तो अगर हम आधी आधी बातें करेंगे कि थोड़ी हद तक ये भी ठीक है, थोड़ी हद तक वो भी ठीक है, तो ये उस किस्म का ऐसे इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको बहुत टाइम, बहुत सारे पैराग्राफ्स और बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं. हमारे पास नहीं है, टाइम कम है. 40 मिनट्स में उस तरह का ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं होगी कि जिसमें दोनों साइड्स को किसी हद तक सपोर्ट किया जा रहा है. क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग नॉर्मल लाइफ में इस तरह की चीजों के ऊपर बात नहीं करते. जैसे अगर क्वेश्चन तो वो कहेंगे कि हाँ मतलब घर में बैठ के मूवी देखने का अलग मजा है, सिनेमा जाने का अलग मजा है. ये तो एक आम सी बात हुई, ये कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुआ. तो इस वजह से आप देखें 7 तक प्रेजेंट्स ए क्लियर पोजीशन थ्रू आउट द रिस्पॉन्स. 7 से ऊपर भी यही बातें हैं, जैसे कि प्रेजेंट्स ए वेल डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन विद रेलेवेंट ब्ला ब्ला ब्ला. तो 7 तक भी क्लियर है. 6 में देखें क्या मसला है. presents a relevant position although the conclusions may become unclear or repetitive. अब अनक्लियर और रिपीटेटिव का मतलब ये है कि वही बातें कंफ्यूजिंग सी हो रही हैं कि उधर की बातें भी आ रही हैं, उधर की बातें भी आ रही हैं, तो फिर क्या फायदा, फिर वो तो वाज़ेह ओपिनियन हुआ ही नहीं. सो दूसरी वजह ये है कि अगर हम दो किस्म के ओपिनियंस को सपोर्ट करें तो इसका मतलब है कि दोनों पोजीशंस के लिए एक एक बॉडी पैराग्राफ रह गए, दो नहीं रहे, तो उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे. एक बॉडी पैराग्राफ में किसी एक आर्ग्यूमेंट को कितना सपोर्ट करेंगे, इसलिए हमें एक ही पोजीशन लेनी चाहिए इनमें से. सो ये बात मैं बताना चाह रहा था. नाउ लेट मी गेट बैक टू दैट फाइल. ओके, हियर वी गो. अच्छा, सो अब इसी के अंदर भी we will try to remain stick to one plus. Don't get driven by your emotions and thoughts and opinions, whatever your opinion might be in real life. यहाँ पे ये मत सोचो कि मेरे जज्बात या मेरे ख्यालात और मेरा ईमान क्या कह रहा है. ये देखो कि मैं किस बात को इजीली लॉजिकली प्रूव कर सकता हूँ. Sometimes a student has more ideas about the arguments which he does not believe in. कभी कभार हम उस बात के बारे में ज्यादा जानते हैं जिसके बारे में हमारा ओपिनियन पॉजिटिव नहीं होता. वजह उसकी कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल ये वजह हो सकती है कि हमने मुमकिन है कि उस क्रिटिकल किस्म के डेटा को ज्यादा देखा हो या पढ़ा हो कि जो उस ओपिनियन के अगेंस्ट में है. सो डोंट गेट ड्रिवन बाय योर इमोशंस, रादर ट्राई टू think which one is easier to defend. बस इतनी सी बात है. अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन टाइप है, इसी के अंदर और भी वर्डिंग हो सकती है. Another example is this one. Some people, okay, कोई पढ़ लें आप में से. Some people believe that it is important for young children to go to school as soon as possible. Others, however, believe that children should be allowed to stay at home and play until they are 6 or 7 years old. Which viewpoint do you agree with? Why? So देखें, अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है
कि आर्ग्यूमेंट्स फिर भी 2 हैं। वर्डिंग थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस में बदल गई है, लेकिन बात वही है जो पहले आई थी। पहले उन्होंने कहा था कि डिस्कस बोथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड गिव योर ओपिनियन। अब कहने कि विच व्यू पॉइंट डू यू एग्री विद, तो इसका मतलब वही है, लेकिन वो वर्डिंग बदल गई है इंस्ट्रक्शंस की। सो अगेन डबल आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन है, तो काम फिर वही करना है, दोनों को डिस्कस करना है, एक के सपोर्ट में एक के अगेंस्ट में। जाहिर है कि रीजंस तो देंगे, वो तो वैसे ही देने, अगर ये वाई ना भी बोले तब भी। सो ये वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, बस इसीलिए डेवलपमेंट समझो, सवाल की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करो। अच्छा, यहाँ भी वही है कि 2 में से एक को पिक करना है। वैसे आप लोग किस पर्टिकुलर ओपिनियन को पिक करते हैं? सेकंड वन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया होता है अगर आप इफ यू गो अगेंस्ट द टाइड्स, यानी जो मेन स्ट्रीम जो आइडियाज हैं उनके अगेंस्ट अगर आप लिखते हैं तो आपका ऐसे अच्छा हो जाता है। उसकी वजह ये भी है कि जो इजी साइड है ना, कि जिसमें जल्दी जल्दी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, वो यूं समझिए कि शायद 90% स्टूडेंट्स उसी तरह के आसान साइड्स में जाते हैं, लेकिन उसको डिफेंड करना जो है वो फिर उसके लिए फिर वही ट्रेडिशनल और क्लीशे किस्म के आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं जो शायद हजारों मरतबा रिपीट हो चुके हों। इसलिए किसी यूनिक पोजीशन के ऊपर भी जाना अच्छी बात होगी। सो कोई भी रीजन हो सकती है। अच्छा, ये भी बात याद रखना, देयर इज नो करेक्ट और फॉल्स आर्ग्यूमेंट हियर, यानी जो लॉजिक है वो कॉमन सेंस वाली बात है, उसमें किसी भी किस्म की लॉजिक आ सकती है। एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं तफसीलन बात करूंगा कि कैसे करने, इवन दे डोंट हैव टू बी ट्रू एंड जेन्युइन इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक उसी क्वेश्चन टाइप के अंदर है। अनदर वन इज दिस, पढ़ें इसको भी। Discuss the advantages of both methods and give your own opinion. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. और इसमें देखें जो बैकग्राउंड है वो लिखा है, some people believe that teaching children at home is best for a child's development, while others think that it is important for children to go to school. कि ये भी 2 और आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमने ऐसे लिखना है। लेकिन यही सवाल अगर इंस्ट्रक्शंस में देखें तो लिखा है डिस्कस the advantages of both methods and give your own opinion। अब ये बाकी इंस्ट्रक्शंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पे जिसके अगेंस्ट में भी जाएंगे उसके भी एडवांटेजेस बता के हम उसको जिसको कहते हैं ना कि अंडरमाइन करेंगे, या हम उसको उस तरह से एक एनालॉजी कंपैरिजन करेंगे कि जिसके फेवर में हम जा रहे हैं उसके ज्यादा एडवांटेजेस और ज्यादा इफेक्टिव एडवांटेजेस, और जिसके अगेंस्ट में जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस कम, और उन एडवांटेजेस को मेंशन करने के साथ साथ साइड इफेक्ट्स यानी डिसएडवांटेजेस के जरिए उसको आउटवे करवाना। ये है आर्ग्यूमेंट करने का तरीका। यानी एडवांटेजेस बताने, अगर दोनों के ही बताने तो फिर हम ओपिनियन कैसे डेवलप करेंगे? तो दो एडवांटेजेस दोनों के बताएंगे, जिसके फेवर में जा रहे हैं उसके ज्यादा और पावरफुल एडवांटेजेस, और उसके काउंटर में डिसएडवांटेजेस नहीं लेके आएंगे, और जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस कम बताने हैं, और उसके साथ काउंटर करने के लिए डिसएडवांटेजेस के जरिए उसको आउटवे करेंगे या ओवरपावर करेंगे, ताकि हम कन्विंस कर सकें, प्रूफ करें। जी, मतलब जिसके फेवर में हम जा रहे हैं उसके डिसएडवांटेजेस नहीं मेंशन करने, राइट? हाँ, मतलब व्हाई वुड वी डू दैट? अगर उसके डिसएडवांटेजेस अगर मेंशन करेंगे तो फिर बात कैसे करेंगे? हाँ, एक कॉन्सेप्ट है इन अ सेंस जिसको हम कहते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरू में कहा कि टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। समटाइम्स हम उस किस्म की बात करते हैं कि अगरचे ऐसा है लेकिन वैसा है।
यानी हम अगरचे के साथ किसी एक डिसएडवांटेज को मेंशन करके उसको नलिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक सिचुएशन के अंदर डिपेंड करता है, और ये भी तभी बेहतर होगा जब कोई और इम्कान बाकी न रहे। प्लस ये कुछ और क्वेश्चन टाइप्स के अंदर भी फायदेमंद हो सकता है, या किसी सर्टेन सिचुएशन में अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल कम हो अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए, तो फिर डिसएडवांटेज को अवॉइड करें। अदरवाइज डिसएडवांटेज को आप मेंशन कर भी लें तो उसको वही स्ट्रक्चर, ऑल्दो को याद रखना, ऑल्दो से सेंटेंस शुरू करेंगे तो वहां पे फौरन डिसएडवांटेज बता दें, तो कॉमा के बाद आप उसको फौरन यू कैन जस्ट नलिफाई इट, you can just neutralize the impact of that disadvantage. So plus देखें कि इसमें you can also come up with information and examples from your experience. So अभी it's the best situation जो इस वक्त जा रही है, जिससे आप you can come up with examples of your own family, children, kids, your own kids, your you know, kids from your surroundings, your neighborhood, कि जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हों, स्कूल जाके किस तरह से डेवलपमेंट होती थी और घर में किस तरह, सो उनकी एग्जांपल्स के जरिए भी आप डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप डिसएडवांटेज मेंशन करना चाहो उस आर्ग्यूमेंट का जिसके फेवर में जा रहे हो, तो उसको भी ऑल्दो के साथ मेंशन करना, यानी उसको ऐसे मेंशन न करना कि चलो ये एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ी, तो ऑल्दो का सेंटेंस जो है ना, तो ऑल्दो के फौरन बाद जो भी बात आती है उसके अंदर हम उस आर्ग्यूमेंट को मेंशन कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं although parents do not have enough time to supervise their children when they are sent to schools, comma, however फिर कोई एडवांटेज अभी फ्लो में तो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप कॉन्फिडेंस को मेंशन कर सकते हैं, however they get quite confident when they are exposed to situations in a classroom environment, which is quite impossible to achieve in home tuitioning. तो अब देखें कि हमने डिसएडवांटेज तो मेंशन कर दी कि क्या डिसएडवांटेज है, ऐसी डिसएडवांटेज है जो खास मैटर नहीं करती, कि बस वालिदैन जो हैं वो सुपरवाइज नहीं कर पाते जब स्कूल भेजे जाते हैं बच्चों को, लेकिन उसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये फायदा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, या अभी ये भी हो सकता है कि however there are lots of teachers who replace the parents, and this wide range of supervision blah 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 helps them improve better or grooms them for some blah blah blah, मतलब कुछ भी। अभी मैं फ्लो में आयल्स ऐसे के तो सेंटेंस उस तरह से इंस्पायरिंग नहीं बना सकता, बट यस यू कैन थिंक ऑफ आइडियाज। तो अभी इसी सेंटेंस को अगर बैठ के डिजाइन किया जाए तो बहुत इंस्पायरिंग सेंटेंस बन सकता है। तो सवाल आपका था कि क्या डिसएडवांटेज मेंशन की जा सकती है, तो तफसीली जवाब ये है कि अगर उसको नलिफाई कर सकते हो, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो इसके इम्पैक्ट को, तो जरूर करो, कोई मसला नहीं। लेकिन बार बार डिसएडवांटेजेस न लेते आना, बस एक ही करना अगर करना भी पड़ा। सैंपल एसेस में ऐसा हुआ भी है, मैं दिखाऊंगा आपको सैंपल्स। ये था डबल आर्गुमेंट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम पढ़ें प्लीज। Children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than children brought up by wealthy parents. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Give reasons for your answer and include any relevant examples for your own knowledge or experience. Okay, how many arguments can you see in the question? How many opinions there are in the description? Sorry? Two? Okay, which two? Which particular ones? Could you just identify them?
So the children which brought up with least amount of money, and the other one is which brought up in wealthy parent by wealthy parents. But those are not opinions. Opinion is just one. That comparison between those two types of children is the opinion. Argument is just one. मतलब ये देखे ना, ओपिनियन ये है कि फलां बच्चे फलां बच्चों से ज्यादा बेहतर तैयार होते हैं, बस ये ओपिनियन है. सो ओपिनियन तो एक ही है, उसके काउंटर में कुछ है ही नहीं ना. So in the double argument questions, you could have seen कि उसमें एक opinion and then the counter narrative, वो दोनों हुआ करते थे. इसमें नहीं है, इसमें एक ही opinion होता है. अच्छा, अब बताएं जरा कि इसको किस तरह से दो पार्ट्स में हमने, चले इससे पहले का जो क्वेश्चन टाइप था उसको तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि एक आर्ग्यूमेंट को एक बॉडी पैराग्राफ में, दूसरे को दूसरे बॉडी पैराग्राफ में. यहां पे क्या करेंगे? सर इसको इंट्रोडक्शन में ही हम कर देंगे अलॉट के आइदर वी अग्री और डिसएग्री. यस बिल्कुल, जैसे कि हमने पिछले में भी कहा कि ओपिनियन तो जो भी हमारा होगा वो तो इंट्रोडक्शन में ही होगा, डबल आर्ग्यूमेंट में भी और इसमें भी, यानी अग्री डिसएग्री में भी. यस बिल्कुल करेंगे. एंड और इसमें भी बात बॉडी में फिर कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपैरिजन एक और करेंगे. बात में बता के ऊपर से आता हूं तो फिर इस पे आते हैं. जिस तरह से हमने डबल आर्ग्यूमेंट में वी क्लियरली took one side, we clearly supported one and we went against the other. So similarly, we are going to either clearly agree or clearly disagree with the given argument. So don't sit on the fence. Don't come up with a muddled argument. क्या मतलब किसी हद तक ये भी ठीक है, किसी हद तक वो भी ठीक है वाली बात is not a good opinion. A clear opinion. मुमकिन है कि आपका दिल ना मान रहा हो कि नहीं यार मतलब ऐसा भी नहीं होता, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू आर नॉट एक्चुअली कन्विंसिंग पीपल. आप बस इंग्लिश बना रहे हो और ये देख रहे हो कि आप ओपिनियन के ऊपर स्टैंड ले सकते हो कि नहीं. ये एग्जामिनर देख रहा है कि कैन यू सपोर्ट एंड आर्ग्यू फॉर अ पर्टिकुलर ओपिनियन. ये बात है. सो हम क्लियरली एक बात को पहले तो पिक करेंगे कि हम अग्री करने जा रहे हैं या फिर डिसएग्री करने जा रहे हैं. अब गौर से सुनना, अगर हम क्लियरली अग्री कर रहे हैं तो अपने आप से पूछना है कि हम क्यों अग्री कर रहे हैं, और हमारे जहन में 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी रीजंस आते हैं उन सारे रीजंस में से अच्छे से फिल्टर करके दो रीजंस पिक कर लो, दो बॉडी पैराग्राफ्स. याद रखो ये 2 reasons for why do you agree. बस let's say if you disagree. सर बट जी सर जब हम अग्री और डिसएग्री करेंगे इंट्रोडक्शन में, देन जो हमने दो सुपर जो भी डिफेंस हम उसका रख रहे हैं कि इन दो रीजंस की वजह से हम अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, वो दो रीजंस भी हमने इंट्रोडक्शन में देनी है. देन एक रीजन को लेके हमने एक बॉडी पैराग्राफ और देन दूसरी रीजन को लेके दूसरा बॉडी पैराग्राफ. बिल्कुल ऐसा ही होगा. यस बिल्कुल यही काम. मैं ख्याल है आप मुइज थे ना राइटिंग की क्लासेस में? You were a part of the classes, right? मुझे मिक्सअप हो रहा है. अच्छा यस बट मिक्सअप हो रहा है. ठीक है नहीं आप जो बात बताने बिल्कुल वही है कि जो भी हमारा ओपिनियन है, लेट्स से अगर हम अग्री कर रहे हैं तो दोनों रीजंस हमारे इंट्रो में ही आ जाएंगे, डिसएग्री करें तो दोनों रीजंस हमारे इंट्रो में आएंगे. उन्हीं दो रीजंस की बेस पे दो बॉडी पैराग्राफ्स बनेंगे. फर्स्ट रीजन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड रीजन सेकंड बॉडी पैराग्राफ. ये कहानी है. सर मतलब दो रीजन से ज्यादा नहीं जाना, राइट? नहीं जाना. उसकी रीजन ये है कि टाइम कम है. ठीक है. यस. अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर हम कभी एडवांस्ड वगैरह की क्लासेस में अगर पढ़ाते हैं तो वहां पे हम 3 रीजंस 4 रीजंस तक भी मतलब स्टूडेंट्स की मर्जी होती है कि जितना लिखें, क्योंकि टाइम होता है ना. लेकिन यहाँ पे 2 रीजंस. उसकी वजह ये है कि एक तो जो किसी भी एसे की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 2 बॉडी पैराग्राफ्स, इसीलिए उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं. तीसरा ये कि अगर हम 3 बॉडी पैराग्राफ्स या 4 बॉडी पैराग्राफ्स भी जाते हैं तो अब हर बॉडी पैराग्राफ के लिए टाइम हमारे पास हो जाएगा कम
तो हमारे पास उस पैराग्राफ को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो बजाय इसके कि कच्चे पक्के 4 पैराग्राफ्स हों बॉडी पैराग्राफ्स, उससे बेहतर है कि 2 स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स हों। वही असल कॉन्सेप्ट है जी। सर इंट्रोडक्शन में हम देंगे दोनों रीजंस दे देंगे, तो फिर बॉडी पैराग्राफ में क्या एक्सप्लेन करेंगे? देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते, हम सिर्फ हिंट देते हैं। उन्हीं जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं रीजंस को अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते हूँ, मेरे पास 2 रीजंस हैं, तो वो रीजन जो है उस रीजन के पीछे भी रीजन होती है, वो उस रीजन की रीजन एक्सप्लेन करने के लिए बॉडी पैराग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी आपके सामने क्वेश्चन है, इसी को ले लेते हैं। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि आप क्या ख्याल है आपका, ये आप इस पे अग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? सर आई गेस इंट्रोडक्शन में हाइलाइट्स बस जस्ट Exactly. देंगे और उसको फिर उन हाइलाइट्स को भी आगे फर्दर डिस्क्राइब करेंगे पैराग्राफ्स में। बिल्कुल, और इंट्रोडक्शन के एक ही सेंटेंस में क्योंकि दोनों रीजंस आ रहे होते हैं प्लस ओपिनियन आ रहा होता है सो वहां पे हम तफसील तो लिख ही नहीं सकते। तो बिल्कुल आप उसको हाइलाइट्स जो कह रहे हैं वही है कि मेन पॉइंट्स मेंशन हो रहे हैं, बस हाइलाइट्स हैं, उसमें तफसील नहीं है, एक वर्ड की फॉर्म में होगा वो। और उसको फिर अच्छा पहले ये बताएंगे इस क्वेश्चन पे आपका क्या ओपिनियन? जी 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 जी। और एग्जांपल्स हम पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे देंगे, नॉलेज के बेसिस पे, क्या बेटर है कि कौन सी दें? और दोनों में दोनों के लिए रीजंस देनी पड़ेंगी, मतलब दोनों के लिए एग्जांपल्स कोट अगर तो दोनों पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दोनों पूछी गई हैं, तो अब हमारी मर्जी है, लेकिन बेहतर ही होता है कि ब्लेंड रखा जाए। यानी 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं, तो एक में नॉलेज से आए, यानी कि एकेडमिक किस्म की एग्जांपल्स, जैसे किसी रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस या किसी आर्टिकल का रेफरेंस, ये फेक ही होंगे, ये हम जेन्युइन नहीं देते आईएलटीएस के अंदर, और वो डिमांड भी नहीं है। प्लस एक्सपीरियंस जो है उसको एक बॉडी पैराग्राफ के लिए रख लो, यानी दोनों का ब्लेंड रखना अच्छी बात है। हाँ, अगर जब नहीं पूछा जाए एक्सपीरियंस का, तो फिर दोनों के अंदर ही फॉर्मल यानी नॉलेज से आएंगे, एक्सपीरियंस नहीं आएगा उसमें। तो दोनों की जब ऑप्शन आए तो दोनों एग्जांपल्स होना बेहतर है, ब्लेंड होना अच्छी बात है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक के साथ ही स्टिक रहें। तो मेरा सवाल आपसे कि आप लोगों से कि इस क्वेश्चन पे आपका क्या ओपिनियन है, बताएं, क्लियरली अग्री करें या क्लियरली डिसएग्री करें। And don't get fall into these traps like to what extent do you agree? तो फिर आप बताते ही रहोगे और उम्रें गुजर जाएंगी कि किस हद तक सर अग्री क्लियरली और किस हद तक डिसएग्री और क्यों। सर क्लियरली क्लियरली एग्री अग्री, करेंगे। एक रीजन बताओ, एक रीजन बताओ कोई भी। Sir, because the children who brought up in poor or the normal or mediocre families have better option to deal with the problems. Is this a reason? I mean, better option how? नहीं, ये तो क्लियर रीजन ही नहीं है ना। I think आपको Sir, कहना चाहिए they are better because prepared. sir, because they face many sort of shortcomings. तो वही मतलब वही बात है कि आप दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड। Yes, sir. अब वही बात लिखेंगे हम बॉडी पर सॉरी इंट्रोडक्शन के अंदर कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड इन सम सेंस। तो अब वो जो बेटर प्रिपेयर्ड हैं, वो बेटर प्रिपेयर्ड क्यों है, ये तफसील बॉडी पैराग्राफ में कैसे हैं, आपको कैसे पता? ये सवालात के जवाब बॉडी पैराग्राफ में होंगे। तो मतलब हम बॉडी पैराग्राफ में उसी बात को एक्सप्लेन करते हैं जिसका हमने टीजर दिया होता है थीसिस स्टेटमेंट में, और जो टीजर दिया है उसका ट्रेलर आता है बॉडी पैराग्राफ के पहले सेंटेंस यानी टॉपिक सेंटेंस में, और फिर उसकी मूवी आती है बॉडी पैराग्राफ की बाकी सेंटेंसेस में, जिसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स होती हैं। क्योंकि हमने हर क्वेश्चन टाइप को अलग से भी देखना है, इसलिए अभी मैंने कोई सैंपल आंसर नहीं रखा, इसलिए फिलहाल तो क्वेश्चन टाइप्स के थ्रू जा रहे हैं। वन मोर, अब देखें, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है और इतना कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, डिपेंड्स।
देखें इसमें लिखा है कि मोस्ट पीपल बिलीव द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी गिवन फॉर ट्रैफिक ऑफेंसेस। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री? क्या ख्याल है आप लोगों का? So totally agree. ठीक है, अब आपके पास रीजंस होंगी, वो 2 रीजंस इंट्रो में मेंशन कर दें, बॉडी पैराग्राफ में तफसीलात लिखें तो आपका ऐसे हो जाता है। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। अनदर वन, इसको रीड करें। Many serial dramas on TV, example, soap operas or soaps play on soap operas. soap operas or soaps play on important social role. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. ये सोप ओपराज, ये जो हैं, जो टेलीविजन में जो ड्रामास चल रहे होते हैं, आमतौर पे जो खानदानी मसाइल, फैमिली इश्यूज के ऊपर जो नहीं होते, तलाक़ें हो रही हैं और यू नो ये सारा जो चक्कर है, ये है उस किस्म के ड्रामा जो फैमिली के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर होती हैं। अब इसके ऊपर भी हम टोटली डिसएग्री। अच्छा, व्हाटएवर, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस ओपिनियन को, और मुमकिन है कि आप अग्री करें, मुमकिन है डिसएग्री करें। दोनों सूरतों में आपके पास 2 रीजंस होंगी और उन्हीं को डेवलप करना है। बस ये इजी क्वेश्चन टाइप है, इतना मसला नहीं है। Another one. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmers. For example, working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children. Examples उन्होंने दिए हैं. You can take help from those examples for your body paragraphs. लेकिन सवाल है कि some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programmers. What's your opinion? कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो चैरिटी के काम होते हैं, अनपेड कम्युनिटी सर्विसेज जो होती हैं, वो इंटरमीडिएट तक लाजमी होनी चाहिए, यानी कि वो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, जो सिलेबस है एक तरह का उसके अंदर। सो अब क्या ओपिनियन है? तो अब व्हाट इज योर ओपिनियन का मतलब है कि डू यू अग्री और डिसएग्री, क्योंकि एक ही ओपिनियन है तो उसके ऊपर हमारा ओपिनियन ये हो सकता है कि हम अग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं। तो वंस अगेन वही बात है, ओपिनियन अगर अग्री वाला है तो भी 2 रीजंस, डिसएग्री वाला है तो भी 2 रीजंस होने चाहिए। ये है आपका एग्री डिसएग्री क्वेश्चन। ये है कॉज सॉल्यूशन ऐसे है। अच्छा, इसमें ये है कि देयर इज अ बैकग्राउंड व्हिच इज ऑलरेडी गिवन, हमेशा उसमें होती है प्रॉब्लम, और फिर पूछा जाता है कि कॉजेज क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग एंड देयर लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज डिक्रीजिंग। कुछ कंट्रीज में लोगों का वजन बढ़ रहा है एवरेज, और उनके हेल्थ में के लेवल पे कमी आ रही है और फिटनेस खराब हो रही है। ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज? तो कॉजेज पूछे जा रहे हैं, व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू सॉल्व देम। इसकी ऑर्गेनाइजेशन के 2 तरीके हैं। एक तरीका, 1 या 2 कॉजेज आप पहले बॉडी पैराग्राफ में मेंशन कर दें, और उन्हीं कॉजेज के ही सॉल्यूशंस आप दूसरे बॉडी पैराग्राफ में मेंशन कर दें, एक तरीका। दूसरा, एक कॉज पहले बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करें और उसके सॉल्यूशंस, 1 या 2 सॉल्यूशंस उसी बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही हो जाएंगे। एक हो गया, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आके एक कॉज और उसका 1 या 2 सॉल्यूशंस वहां पे मेंशन कर दें। तो दोनों तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो आसान ये है कि अगर एक कॉज और एक सॉल्यूशन भी अगर आपके पास हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसी सूरत में आपके पास 2 बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, तो पहले में सिर्फ कॉज, दूसरे में सिर्फ सॉल्यूशन। लेकिन जहां पे आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो कि जिसमें 2 कॉजेज बताए बगैर बात नहीं बन सकती, तो वहां पे आप उसको दूसरे तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास 2 कॉजेज हों, लेट्स से आप ये भी कर सकते हैं कि पहले बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ कॉजेज पे फोकस किया, चाहे 2 हो या 3, लेकिन 2 से ज्यादा मत लिखना। हमेशा भटकते रहोगे अगर ऐसा करोगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसको फिर उसके सॉल्यूशंस बताने में।
और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में उन्हीं 2 कॉजेज के ऊपर सॉल्यूशंस लिख दो, और एक कॉज के लिए एक सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सो ये भी पॉसिबल है। और जो दूसरा तरीका कि पहले बॉडी पैराग्राफ में एक कॉज और उसका सॉल्यूशन या उसके 2 सॉल्यूशंस, सेम इज द केस विद द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। दोनों तरह से ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। सवाल को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आंसर लिखना मुश्किल नहीं होगा, और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन टाइप नहीं है। जितने कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। जी हाँ जी जी। So which one is more suitable? देखें, अभी स्वीपिंग स्टेटमेंट देना भी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टाइप। लेकिन अगर आप मैं कहूंगा कि देखो, मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ ही एसोसिएटेड है, तो मैं यही कहूंगा कि आसान ये है कि पहले बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ कॉजेज लिखे जाएं और दूसरे में सिर्फ सॉल्यूशंस। ये आसान काम है। लेकिन अगर मुझे लेट्स से अगर लिखना होता, लेट्स से इफ आई वर टू राइट एन एसे, तो मैं लिखता पहले में कॉज और उसका सॉल्यूशन और दूसरे में कॉज और उसका सॉल्यूशन, क्योंकि उससे वो ज्यादा इंटैक्ट लगता है। लेकिन मसला ये है कि ये बहुत मुश्किल सा हो जाता है कभी कभार स्टूडेंट्स को उस तरह से टेम्पलेट को सिखाना भी, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है और महीने लग जाते हैं, फिर वो भी बात समझ नहीं आती। इसलिए मेरा ख्याल है कि आसान अगर पूछा जाए तो ये है कि पहले बॉडी पैराग्राफ में कॉजेज और दूसरे में सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं ये करता कि कॉज लिखता और उसका सॉल्यूशन साथ लिख देता, फिर अगले में कॉज लिखता और उसका सॉल्यूशन साथ लिख देता। लेकिन उससे क्या होगा, ये वो बात है जो जनरल फॉर्मेट सिखाया जाता है ना ऐसे का, उससे थोड़ी हटके हो जाएगी। क्योंकि हम नॉर्मली बस ऐसा करते हैं कि एक बात मेंशन कर दी, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और रीजन और एग्जांपल बता दी। तो अब अगर एक ही बॉडी पैराग्राफ में अगर कॉज भी आ रही है, सॉल्यूशन भी आ रही है, तो वो ऑफ कोर्स वो जो सिलसिला है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, नो डाउट। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। ये मैं जिस मकाम से आपने सवाल पूछा है, मैं उसी लेवल पे जाके आपको आंसर कर रहा था। आई होप कि आपके जहन में वो बात फ्रीक्वेंसी मैच कर गई हो। आई होप सो। Sir, I think so कि second one is more better because इस तरह हमारा well organized एक आंसर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पहले काज देते हैं और देन ही हम उसका नेक्स्ट ही सॉल्यूशन दे देते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर, तो दैट्स व्हाई मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा भी यही ओपिनियन है कि पहले हम काज दें और साथ बिल्कुल हम सॉल्यूशन देते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में आप मतलब मेंशन कर दें जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन साथ साथ मेंशन कर दें। पहले तो सारी प्रॉब्लम्स अगर हम इंट्रोडक्शन में दे दें, लिख लें, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले में जो कॉज है उसको भी साथ में लिखें और साथ में जो सॉल्यूशन है उसको भी कर दें, तो फिर 2 पैराग्राफ बन जाएंगे सेपरेटली। बिल्कुल ऐसा ही। ओके जी जी जी। सर इसमें एग्जांपल्स कोट करेंगे और किस तरह की एग्जांपल्स होंगी? बिल्कुल एग्जांपल्स कोट करेंगे, और एग्जांपल इस तरह से कोट करेंगे कि हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल फलां कंट्री में ये मसला था, उसमें इस मसले को इस तरह से टैकल किया गया, लिहाजा एक अच्छा सोल्यूशन है। अब वो फलां कंट्री इज नॉट गोइंग टू बी अ रियल इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं कि रिसेंट जो है ना कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने ये रिजल्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स XYZ issue can be tackled by XYZ method, या आप कह सकते हैं according to a recent survey 78% of students who used to learn online failed their exams, so this proves that XYZ। तो examples जो हैं वो real तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना सारे information हो नहीं सकती। तो एग्जाम्पल ऐसी होगी जिसमें हमने जो सोल्यूशन दिया है उसी सोल्यूशन को कारगर साबित किया गया, यानी हमने किसी प्रॉब्लम के लिए एक कॉज बताई और सोल्यूशन तो बताया, लेकिन वो सोल्यूशन को प्रूव कैसे करेंगे कि ये सही सोल्यूशन है? वो इसी तरह से प्रूव करेंगे कि हम बताएंगे कि फलां यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का ये ख्याल है, या ये कहेंगे कि फलां कंट्री में ये काम हो गया और इस तरह से कारामद हुआ है, लिहाजा करेंगे। या आप किसी स्कॉलर का रेफरेंस दे सकते हैं, या आप किसी रिसर्च का रेफरेंस दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी के इमेजिनरी सर्वे का
रेफरेंस दे सकते हैं, एग्जांपल उस तरह से आती है। सर, लेकिन वो causes की एग्जांपल बात आपके की- लॉजिक के साथ होनी चाहिए। जी जी, मैं पूछ रही थी एग्जांपल, सॉरी, कॉजेस के साथ भी एग्जांपल होंगी या सिर्फ सॉल्यूशन के साथ देनी कॉजेज है? के साथ लॉजिक और एग्जांपल दोनों हो सकती हैं, लेकिन यू विल हैव टू पिक वन। या तो अगर आप कॉजेज और लॉजिक दोनों बताना चाहेंगे तो ऐसे बहुत लेंथी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा करें कि एक कॉज के साथ एक लॉजिक बता दें, दूसरे के साथ एग्जांपल बता दें। फॉर एग्जांपल, पहले बॉडी पैराग्राफ में आप कॉज बता रहे हैं, उसका बता दें लॉजिक, और साथ में उसका सॉल्यूशन बता के उसका बताएं एग्जांपल। दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आके कॉज बताएं, उसका बताएं एग्जांपल, और सॉल्यूशन बता के उसका बताएं लॉजिक और एग्जांपल। तो कॉजेज जो हैं उनके ऊपर इतना फोकस न रखें जितना एक्सप्लेन आप सॉल्यूशन को करेंगे। बस यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को क्लास में जब पढ़ाता हूं तो मैं पहले में सिर्फ कॉजेज और दूसरे में सिर्फ सॉल्यूशंस का बताता हूं, क्योंकि इससे जो मेन रिदम है वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि बॉडी पैराग्राफ में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दोनों होनी चाहिए। नॉर्मली हम यही कहते होते हैं, इसी वजह से मैं आमतौर पर उस तरफ रखता हूँ। लेकिन आप लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ तो अच्छी बात होगी, अगर आप दोनों को इस तरह से कर पाए। और अगर आप फास्ट लिख सकते हो और फास्ट सोच सकते हो तो लॉजिक और एग्जांपल दोनों देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 40 मिनट में ये काम सारे पॉसिबल होंगे। राइट सर। चलें एक और देख लेते हैं। Fewer and fewer young people are choosing to become teachers. Why do young people not want to be teachers? How this could be changed? पहला है प्रॉब्लम कि कम से कम लोग टीचर्स बनना चाह रहे हैं। दूसरा पूछा गया है कॉज, और फिर सॉल्यूशन। वही फॉर्मेट है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसमें भी प्रॉब्लम गिवन है, कॉज और सॉल्यूशन पूछा है। अनदर वन, प्रॉब्लम गिवन है कि पोल्यूशन इज ड्रास्टिकली increased with more and more people switching to personal vehicles. What are the causes? Discuss the solutions. Once again, बात वही है कि कॉज और सॉल्यूशन पूछी जा रही है, प्रॉब्लम नहीं पूछी जा रही। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें प्रॉब्लम का बैकग्राउंड है। ओवर पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज हैज लेड टू न्यूमरस प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से अर्बन एरियाज में। आइडेंटिफाई वन और टू सीरियस वंस। उन न्यूमरस प्रॉब्लम्स में से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में से एक या दो सीरियस मसाइल को आइडेंटिफाई करो and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems, और solutions बताओ। अब causes नहीं पूछे हैं, अब प्रॉब्लम्स पूछे हैं। बस ये मामूली सा डिफरेंस है, काम वही होगा जो कॉज और सॉल्यूशन में हो रहा था। चाहो तो पहले बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स और दूसरे में सॉल्यूशंस रखो, चाहे तो एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, दूसरा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ठीक है, ये फर्क है बस। कॉज का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, आप कॉज बेशक बीच में मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दैट्स नॉट द मेन पॉइंट हियर, क्योंकि वो पूछा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. ये बैकग्राउंड है प्रॉब्लम का, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलें तो कोई बुरी बात नहीं है, खेलने दें। What are the negative impacts of playing computer games? ये है प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। And what can be done to minimize the bad effects? कि जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी सॉल्यूशंस क्या हैं। सो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताना है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स, कि कंप्यूटर गेम्स खेलने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आई साइट लूज कर सकते हैं, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो सकती है, फोकस हट सकती है, आईक्यू जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, एडिक्टेड हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, वगैरह वगैरह। Problem solution का एक और example, the internet has transformed the way information is shared and consumed, but it also has created problems that did not exist before. कि कंप्यूटर के फायदे अपनी तरफ, लेकिन नुकसानात भी कुछ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन से प्रॉब्लम्स हैं वही तो हमने बताने हैं। What are the most serious problems associated with the internet and what solutions can you suggest? तो प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं और सॉल्यूशंस। ये नहीं पूछा जा रहा कि क्यों हो रहे हैं, यानी कॉजेज नहीं पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना।
बस प्रॉब्लम्स बताने हैं और उसके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो ये इजियर होता है एज कंपेयर टू कॉज सॉल्यूशन ऐसे। ये भी वही है, ये फाइल में अपलोड कर लूंगा, पढ़ लेना। मैं ख्याल है कि इस पे ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखें, इंटरनेशनल टूरिज्म हैज ब्रॉट इनॉर्मस बेनिफिट टू मेनी प्लेसेस। इंटरनेशनल टूरिज्म से बहुत सारे फायदे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों को। एट द सेम टाइम, यानी मीनवाइल देयर इज कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल इनहैबिटेंट्स एंड द एनवायरनमेंट, कि इसी तरह से जितने फायदे हैं उसी तरह से कुछ मसाइल भी हैं कि लोकल इनहैबिटेंट्स जो हैं वो थोड़े से इस हवाले से उनके लिए मसाइल हैं और इन्वायरमेंट के लिए मसाइल हैं इंटरनेशनल टूरिज्म के। तो अब हमने ये दोनों के फायदे, इस कॉन्सेप्ट के यानी इंटरनेशनल टूरिज्म के फायदे और नुकसान के बारे में बात करनी है। सवाल है कि डू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवे द एडवांटेजेस, यानी ये बात यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दोनों हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि इनॉर्मस बेनिफिट टू मेनी प्लेसेस, बहुत ज़्यादा फायदा होता है बहुत सारी जगहों का, लेकिन बहुत सारे लोकल इनहैबिटेंट्स के लिए मसाइल होते हैं जहाँ पे टूरिज्म होती है, प्लस एनवायरनमेंट के लिए मसाइल होते हैं। अब एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सवाल ये है कि इनमें से ज्यादा कौन से हैं, यानी ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पैक्ट किन का है, एडवांटेजेस का है कि डिसएडवांटेजेस का। अगर हमें लगता है कि डिसएडवांटेजेस का है तो हम कहेंगे हाँ जी डिसएडवांटेजेस का है, वरना हम कहेंगे नहीं जी एडवांटेजेस ही ज्यादा हैं। जी आप कुछ कह रहे हैं मुइज? सर यही कह रहा था कि आई थिंक एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे बिकॉज उन्होंने मेंशन किया हुआ है has brought enormous benefits to many places. लेकिन देखें सवाल जो है वो आपको सिर्फ बैकग्राउंड दे सकता है, आप उसी एनॉर्मस को आप एक्सेप्ट करना भी एक तरह से लाजमी नहीं है, मतलब आप दूसरे सेंस में भी जा सकते हैं, बट यस क्योंकि एनॉर्मस बेनिफिट है तो जाहिर है कि एक इम्पैक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन फिर वहां पे भी यानी आप जो भी ओपिनियन रखना चाहें आपको बात दोनों के ऊपर करनी होगी, यानी आपको बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करनी होगी और डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात करनी होगी। तो वंस अगेन दो बॉडी पैराग्राफ्स, एक बॉडी पैराग्राफ में एडवांटेजेस, दूसरे में डिसएडवांटेजेस, और करने के दौरान ही उसी पैराग्राफ ही बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अनदर मेथड इज एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज जो आपस में कोरेस्पॉन्डिंग हो, यानी जिनका आपस में रिलेशन बनता हो, उनको एक बॉडी पैराग्राफ में रखें और कंपेयर करके अपनी बात प्रूव करें कि आपके लेट्स से आपके ख्याल में एडवांटेजेस ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा इम्पैक्ट है उनका, वो ओवर पावर कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को। तो अब एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज को एक बॉडी पैराग्राफ में कंपेयर करके आपने एडवांटेज को ज्यादा इम्पैक्ट वाला प्रूव करना है। यही काम दूसरे बॉडी पैराग्राफ में करना है कि दूसरा एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज लाया, कंपेयर किया और आपने प्रूव किया कि एडवांटेज जो है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है और डिसएडवांटेज जो है उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर लेवल पे नहीं है। तो यही कंपैरिजन करके बात प्रूव करने का नाम है ये वाला ऐसे। सर बट ये कंफ्यूजिंग सी स्टेज नहीं बन जाएगी? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक एडवांटेज बोल रहे हैं कुछ भी किसी के बारे में और हम साथ ही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी हो सकता है। देखें आप इसको यूं समझिए, मिसाल के तौर पे अभी लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि इनहैबिटेंट्स जो हैं उनके लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक बॉडी पैराग्राफ में। अब आपने क्योंकि प्रूफ करना है कि डिसएडवांटेजेस सॉरी एडवांटेजेस ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे ऑल्दो मैनी इनहैबिटेंट्स have let's say have been complaining about their privacy being vulnerable due to the overflow of tourists and their locality, comma, however, the revenue that is generated all comes from the tourism, or आप ये कह सकते हैं however, tourism is at the same time their bread and butter. तो अब वहां पे डिसएडवांटेज भी आपने मेंशन किया, लेकिन एडवांटेज जो है वो उस तरह से मेंशन कर रहे हैं कि वो कन्विंसिंग बन रहा है कि यार प्रिवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन मसला ये है कि वो कमा भी तो यहीं से रहे हैं और कोई जरिया भी नहीं है। तो आगे से आप जो आपका जो इसी सेंटेंस के अंदर जो बात होगी उसमें कहें कि प्रिवेसी वाले इश्यूज हैं लेकिन उनको टैकल किया जा सकता है, लिहाजा
उनकी जो इनकम है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, और जो ये चीज़ें ये कंटिन्यू रहे, इंटरनेशनल टूरिज्म जो है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि भाई लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नो वन वुड ट्राई टू रिस्क हिज और हर प्रिवेसी, कोई भी अपने प्रिवेसी को रिस्क पे लगा के, स्टेक पे लगा के अर्न नहीं करना चाहेगा। तो असल में बात यह है कि दुनिया में हर आर्ग्यूमेंट का कोई जवाब है। तो किसी भी तरफ से जाओगे तो आप इस चीज से बच नहीं सकते कि कोई भी चीज जो है ना वो 100% सेफ ओपिनियन के तौर पे नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं पे हमने अपने बात के ऊपर हठधर्मी का मुजाहरा करना होता है, यही है असल एसएम। हाँ, अगर आपको उस तरह से वो बात क्लियर करने में मुश्किल पेश आए तो आप एक बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ एडवांटेजेस, दूसरे में सिर्फ डिसएडवांटेजेस और थर्ड बॉडी पैराग्राफ क्रिएट करो जिसमें आप बताओ कि आपके ख्याल में कौन से ज्यादा हैं। और आप ये काम कंक्लूजन में भी कर सकते हो या किसका इम्पैक्ट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले बॉडी पैराग्राफ में 2 एडवांटेजेस बता दो, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में 2 डिसएडवांटेजेस बता दो, और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि जो एडवांटेजेस हैं उनको उस तरह से इस्टेब्लिश करो कि उनके बगैर कोई चारा ही नहीं है, और वो उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना पेश करें, उनको उस तरह से प्रूव करें कि एज इफ दे आर इजी टू बी टैकल्ड, there are some issues but they can be tackled and steps have been steps have been taken by government or by individuals। तो कन्विंस करने के लिए पहले ही बताना होगा कि इन एडवांटेजेस का मसला जो है वो डिसएडवांटेजेस का जो मसला है इसको टैकल पहले से किया जा रहा है या किया जाएगा या पॉसिबल है, और उनका इम्पैक्ट एज कंपेयर टू एडवांटेजेस कम है, ताकि आप अपने ओपिनियन पे पहुंच सको। यानी वो ओपिनियन आपका यही है कि एडवांटेजेस फिर भी आउटवे कर रहे हैं। जी, आपका कोई सवाल है? सर बट अगर हम इनको सेपरेट भी अगर डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस इन द सेकंड वन इज डिसएडवांटेजेस, तो सर क्या तब भी इनमें कोई लिंक होना चाहिए लाजमी? मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में तब भी कोई लिंक होना चाहिए, मतलब उसी के रेफरेंस से कोई होना चाहिए, बिल्कुल साइड बाय साइड डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं? वो एग्जैक्ट कोरिस्पोंडिंग चीजें होना लाजमी नहीं है, क्योंकि देखें अगर कोरिस्पोंडिंग होते तो हम उनको इकट्ठे लिख लेते। तो कोरिस्पोंडिंग होना कोई इसेंशियल बात नहीं है यहाँ पे। आई मीन फॉर एग्जांपल अभी देखें ना, इवन आप जब इकट्ठा भी रखते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिविजुअल्स के लिए क्या फायदे हैं, फायदे लेट्स से वहां से वो कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, और नुकसान क्या है, प्राइवेसी स्टेक पे है। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है, लाजमी नहीं कि कोई ताल्लुक हो। मतलब कैसे हो सकता है? मतलब लेट्स से कि अगर कोई बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो एडवांटेज है, अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उसको इकोनॉमी में तो कहीं पे लॉस है ही नहीं ना, तो वहां पे लॉस नहीं है, तो फिर डिसएडवांटेज कहाँ पे आया? वो जो डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड कर सके। सो वो कोरिस्पॉन्डिंग भी हम सिर्फ उसको बना के दिखा सकते हैं, एक्चुअली तो वो होता नहीं। सो इट्स नॉट इसेंशियल कि वो एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में फॉल करें जिस कैटेगरी में वो पहले चल रहा था। ओके सर, ठीक है। तो आप ये ना ढूंढें कि यही एडवांटेज है तो इसी तरह का कोई डिसएडवांटेज चाहिए मुझे, नहीं नहीं, कोई भी डिसएडवांटेज हो सकता है। ये कहानी इसमें थी, लेकिन ये एक और तरह से भी यही क्वेश्चन टाइप आ सकता है जो अभी हम देख रहे हैं। यानी इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक को प्रूव करना है कि ज्यादा इंपैक्ट रखता है या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस में से। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं इस पे वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस सवाल को देखें कि इन सम कंट्रीज यंग पीपल आर इनकरेज्ड टू वर्क और ट्रैवल फॉर अ ईयर। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि टाइम काफी लगा। In some countries, young people are encouraged to work or travel for a year between finishing high school and starting university studies। कि कुछ countries में जो youngsters हैं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने से पहले उनको कन्विंस किया जाता है या इनकरेज या मोटिवेट किया जाता है कि या तो वो ट्रैवल करें या कहीं पे कोई जॉब शॉप कर लें। अब सवाल ये है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब ये प्रूव ही नहीं करना, यानी अब ये डिस्कर्सिव ऐसे है, पहला वाला आर्गुमेंटेटिव था, अब हमने प्रूव ही नहीं करना कि कौन से ज्यादा हैं। बस एक बॉडी पैराग्राफ में चुपचाप एडवांटेजेस और दूसरे में चुपचाप डिसएडवांटेजेस, ये काम है इसमें। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का। इसका
इसको समझने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेंगी हर मरतबा। गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में द यूज ऑफ सोशल मीडिया सच एज फेसबुक एंड ट्विटर इज रिप्लेसिंग फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद मैनी पीपल। ये बैकग्राउंड है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया उसकी जगह ले रहा है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं ये डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं कि नहीं है, ये सवाल है। यानी दोनों हैं सही, लेकिन किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है? यानी आपके ख्याल में एडवांटेजेस ज़्यादा पावरफुल हैं या डिसएडवांटेजेस? तो वंस अगेन वही कहानी जो पहले आई थी, और ये वो वाला सवाल है जिसमें प्रूफ कुछ नहीं करना, दोनों तरफ की बात बतानी है। विल दिस हैव मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का मतलब भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करने वाला। और ऊपर अच्छा सॉरी ये कन्विंस करने वाली बात है, सॉरी ये इसमें आपने करना है कि कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। डू द एडवांटेज ऑफ दिस डेवलपमेंट आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ये वर्डिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वर्डिंग हो सकती है। इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज का वर्ड हो सकता है, प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा एक और वर्ड था यार मेरे जहन से निकल रहा है, it's on the tip of my tongue. Advantages, disadvantages, pros, cons, positive and negative impacts. एक और भी वर्ड था, क्या वर्ड था? ड्रॉबैक्स। हाँ, ड्रॉबैक्स डिसएडवांटेजेस के लिए आ सकता है वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल जैसा ये वर्ड भी है, लेकिन उसमें पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उनके लिए क्या वर्ड था मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल मतलब वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है सवाल में, ये तो इजी बात है। इसी तरह सवाल सादा वाला भी हो सकता है जिसमें कुछ प्रूफ नहीं करना, सिर्फ बताना है कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होगा। मिक्स्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दो चीज़ों का ब्लेंड है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन टाइप का। कभी कभार दूसरे वाले क्वेश्चन टाइप्स भी कहीं कहीं पे मिक्स हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन टाइप का ब्लेंड होता है। थर्ड क्वेश्चन में कॉज और सोल्यूशन था, तो उसकी जगह पे सिर्फ कॉज पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया व्हाई इज शॉपिंग सो पॉपुलर, यानी कॉज क्या है भाई इस काम का। यहाँ पे किसी प्रॉब्लम का कॉज नहीं, किसी आइडिया का कॉज, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है तो उसका क्या कॉज है, क्यों हो रहा है, व्हाई। और फिर जैसे अभी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े, तो अगला सवाल उनके ऊपर होता है कि व्हाट इफेक्ट्स डज इट्स इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी हैव ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑन सोसाइटी, कि क्या असरात होते हैं, यानी असरात क्या होते हैं, या तो अच्छे असरात हैं या बुरे असरात हैं। सो ईदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, आप चाहें तो एक मेंशन करें, आप चाहें तो दोनों मेंशन करें। इट्स बेटर टू जस्ट मेंशन वन एंड टू स्टिक टू दैट। अनदर वन, वही इसमें भी why is this happening यानी cause पूछा गया, what will be the effects on the family and society, फिर उसके effects पूछेगा, यानी advantages या disadvantages में से कोई एक। So एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम बताएंगे why is this happening, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में effects बताएंगे, यानी या तो advantages या disadvantages। इसमें भी यही करेंगे, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि ये आखिरी स्लाइड थी। तो अभी क्वेश्चन टाइप्स ये मैंने आपको दिखाए। अभी क्वेश्चन टाइप्स को हमने ना सिर्फ सरसरी देखा है, सवालात को मुख्तलिफ एंगल से बात की है। अभी हर क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन टाइप को टैकल करेंगे। जो पहली क्लास होगी उसमें डबल आर्ग्यूमेंट, दूसरी क्लास में एग्री डिसएग्री ऐसे, तीसरी में कॉज सोल्यूशन या प्रॉब्लम सोल्यूशन को मिक्स करके, अगले में एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगले में मिक्स क्वेश्चंस को। तो 5 क्लासेस में 5 क्वेश्चन टाइप्स हो जाएंगे डिटेल में, तो डोंट मिस अ क्लास। कोई सवाल है तो पूछें। सर कल क्लास है? नहीं, कल क्लास नहीं है। ये इसी वजह से तो मैं एक्स्ट्रा टाइम देता रहता हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्लासेस ना लेनी पड़े। सो बस मेरा ख्याल है कि इसके बाद मंडे को ही मिलना चाहिए। हाउएवर कैंपस जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डेज ओपन है, फ्राइडे सैटरडे संडे कैंपस ऑफ है। सो अगर किसी ने मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो हमारा प्लान है आगे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने का। देखते हैं कैंपस में भी अगर किसी ने आना हुआ तो, लेकिन फिलहाल तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, देखते हैं आगे के दिनों में। बहरहाल इसके बाद फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। आई विल ट्राई कि वीकेंड पे आपके जो असाइनमेंट्स हैं उन पे कोई फीडबैक भेज सकूं। 2 दिन है, लेट्स सी। तो कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर बाय बाय।
सर Okay, असेसमेंट बस फीचर्स की स्लाइड्स भी कर दें क्या कर दूं? सर Sorry? असेसमेंट फीचर्स की स्लाइड्स भी कर दें हाँ, शो कर दूं या अपलोड कर दूं? सर अपलोड कर दें वो ज्यादा बेहतर है एक मिनट, अभी मैं ख्याल है आप फिलहाल के लिए पूछ रहे थे, तो लेट मी शो इट ऑन स्क्रीन. Yes, you have a question, I think. जी. नहीं, अपलोड तो करूंगा. अभी आपको कोई सवाल है, मेरा ख्याल है कि नहीं? अब्दुल मोइज साहब. सर क्वेश्चन नहीं है मैंने उसमें 9 पॉइंट स्कोर के लिए जो उसके फीचर्स वो नोट करना था अच्छा, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना बाद में. ठीक है. सर All right. So that's it. Allah Hafiz. Bye bye. Fi amanillah.